Okay, so good afternoon everybody. In the last lecture we had finished geometry 1.2 and I had given the basic instruction about the 1.3. So we will revise first of all whatever we had in the last lecture and we are proceeding first 1.3 over here. Okay, so now we'll start everybody. So देखो अभी इन 1.3 में मैंने लास्ट लेक्चर में सबको बताया था कि उसमें we will come across 3 tests. First is angle test of similarity, then side test of similarity, and SAS test of similarity. So here we have to show that the triangles are similar by using angle मतलब AA test. Second one is SSS, तीनों sides रहेंगे, and third one is side angle side test. So with the help of these 3 tests we are solving exercise 1.3. So first of all I am solving the solved example. तो सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 18 पे देखो दिया हुआ है, तो उधर हम लोग ने 2-3 सम्स करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स. सी हियर सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे. सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 18 के ऊपर दिया उन्होंने. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे हैड गिवन द डायग्राम आल्सो फ्रॉम देयर. This is one triangle, this is other triangle. Okay, so the naming should be x, y, z, l, m, n. This is x, y, z, l, m, and what? N. So angle y congruent to angle m they are given to you, and angle m and n. Angle m is how much? 100 degree. Angle m कितना दिया? 100 degree दिया है. Angle m कितना दिया है उन्होंने? 100 डिग्री दिया हुआ है. एंगल एन इज 30 डिग्री. एंगल एन कितना दिया है? 30 डिग्री दे हैड गिवन टू यू. आफ्टर दैट जेड इज 30 डिग्री. हियर दे हैड गिवन टू यू जेड इज हाउ मच? 30 डिग्री, and y also how much? 100 degree. Okay, so this is instruction they are given to you. Are the triangle xyz elements similar? If yes, then by which test? Okay, तो क्या करने का है? टू प्रूव आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन आर सिमिलर. ओके, ये प्रूफ करने का है. इफ यस then state the test. Okay, so now see how should I prove here. टू प्रूफ बताने का है. अब इसका प्रूफ देखो हम लोग कैसे करेंगे. ओके, इज वेरी सिंपल प्रूफ. इन वाइल राइटिंग प्रूफ इधर क्या करेंगे? 2 कॉलम. इधर क्या आएगा? स्टेटमेंट. इधर क्या आएगा? रीजन. ओके, ये राइट स्टेटमेंट रीजन. ओके, वी हैव 2 ट्रायंगल स्टूडेंट. इधर क्या आएगा? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन. फर्स्ट पॉइंट देखो उन्होंने क्या दिया है? एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एम. क्यू एवरीबडी? ईच हाउ मच? 100 डिग्री. ओके, आफ्टर दैट नंबर 2 एंगल जेड is congruent to angle n, y each 30 degree दिया हुआ है. तो by which two tests? Therefore I'm getting here triangle x y z similar to triangle l m n by angle test of similarity. It's very simple. Got it everybody? How to solve? By angle test of similarity. ऐसा सॉल्व करने का अपने को क्वेश्चन. इज इट क्लियर टू यू? समझे आपको कैसे सॉल्व करने का है? सो नाउ सी द क्वेश्चन. बट उसी पेज के ऊपर और एक दिया है, पेज नंबर 19. अभी देखो पेज नंबर 19 के ऊपर दिया है दूसरा सॉल्व हम करेंगे हम लोग अभी. सी द पेज नंबर 19 फ्रॉम देयर. पेज नंबर 19 के ऊपर और एक उन्होंने एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है. 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, देन यू विल कम टू नो द एंटायर एक्सरसाइज वेरी क्लियरली. ओके,
नाउ देखो अभी पेज नंबर 19 के ऊपर से वापस दो ट्रायंगल बना के दिए उन्होंने. So this is one triangle and this should be your other triangle. Okay, so naming should be, one is PMN and UVW. This is PMN, this is PMN, this is U, this is V, this should be W. Okay, so value should be 6, 10, 3, 5. This is 6, 10, this is 3 and 5. Marking that given to you. What I asking to you, are the two triangles similar by which test? Same question. To prove, are triangle PMN and UVW similar and by which test? By which test? Same. देखो method भी same. खाली in the previous question they had given you the angles. अभी देखो इधर statement, इधर क्या आएगा अपना कॉलम रीजन. ओके एवरीबॉडी देखो कैसे करने के. हाँ, सो इन ट्रायंगल PMN, in triangle PMN and triangle UVW. Okay, so now see here, PM upon UV, PM upon UV is equal to MN upon VW is equal to what? 1/2. अदरवाइज डू वन थिंग, मैं तुमको इजी वे बता रहा है. इधर देखो, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग हम लोग ऐसा करेंगे. पहले अंदर स्टेटमेंट लिख लो ऐसा. ओके, नो व्हाट शैल वी डू हियर. इधर देखो फर्स्ट पॉइंट इधर लिखेंगे, कंसिडर PM अपॉन व्हाट? UV. कितना है? 6/3. मतलब कितना आया? 2/1. ओके, सो दिस इज योर given. Okay, then what is next? MN upon what? VW. This is what? 10/5. This is again 2/1. A भी क्या आएगा? given. पहले लिख लो ऐसे, नंबर 1 में हो जाएगा. Then you continue here statement number 2. अभी नंबर 2 पे आएंगे. Now in triangle PMN and UVW, उसमें से number 1, what is that? What we get over here? PM upon UV is equal to what? MN upon VW is what? 2/1. Getting? From 1. Then number B, इसमें से angle M is congruence to angle V. This is also they had given. So by which test? SAS test. You are getting? Therefore, triangle PMN similar to triangle UVW by SAS test. Getting everybody how to solve both the questions? तो देखो मैंने क्या किया इसमें. इन ट्रायंगल मैंने पहला बताया कि दिस अपॉन दिस 2/1 है, देन दिस अपॉन दिस हम 2/1, दोनों सेम सेम है. बाद में टेक टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल PMN एंड UVW में दिस इज इक्वल टू दिस 2/1, एंगल M इज इक्वल टू एंगल V गिवन. सो बाय SAS दे आर सिमिलर एंगल्स. ओके, सो नाउ अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस. सो नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में भी उन्होंने वैसे ही बोला है. सो नाउ सी उसी पेज के ऊपर सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट दे गिवन टू यू. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? Can we say that the two triangles similar according to the information given it? If yes, then by which test? So x y z m and p दो ट्रायंगल ड्रॉ करेगा मैं इधर अभी.
थर्ड सॉल्व एग्जांपल, इधर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इधर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वी शुड नेम इट ओवर हियर, द नेमिंग शुड बी एक्स वाई जेड एम एंड पी. दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज एम and what is this p. So 14 20 z, this is 14, this is 20, this is z congruent to here, this is 21 30 and p 21 30 और इधर दिया हुआ है p. ओके, तो क्या बोला है, आर द ट्रायंगल सिमिलर, टू प्रूव. इधर क्या आया देखो, are triangle x y z and m and p are similar, if yes by which test, by which test. okay, तुम लोगों को बताने क्या, अभी देखो proof. Now what is proof over here? I'm telling the proof over here. Here you write statement, here you should write here reason. okay, तो statement and reason over here. देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी, एंड व्हाट एम एन पी. देखो अपने पास क्या क्या है, एक्स वाई अपॉन एम एन. ओके, कितना है 14 बाई 21, तो दिस इज 2 बाई 3. देन अगेन वाई जेड अपॉन एन पी इज इक्वल टू 20 बाई 30, मतलब ये भी कितना आया, दोनों रेशियो तो इक्वल मिल गया, बट उन्होंने क्या दिया हुआ है, सो दिस पार्ट इज दे हैड गिवन टू यू. ओके, और क्या दिया है, also angle Z is congruent to angle P. This also they had given. Now you told me these are the two sides. अगर उन्होंने एंगल y देते थे ना, तो आई एम टेलिंग x साइड एंगल साइड. सो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ SAS टेस्ट? SAS टेस्ट का मीनिंग होता है एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स, बट ये जो एंगल Z और एंगल P इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स. अभी क्या लिखेंगे हम लोग, बट एंगल Z एंड एंगल P, बट एंगल Z एंड एंगल P इज not included, is not included angles, is not included angles by the sides, by the sides which are in proportion, which are in proportion. Therefore triangle XYZ and triangle MNP are not similar. I'm telling you again. So what was the meaning of SAS test? मुझे क्या चाहिए था, देखो उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एम एन पी में आर सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर. तो मुझे में क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी, एक्स वाई अपॉन एम एन 14 बाई 21, वाई जेड अपॉन एन पी 2 बाई, दोनों 2 बाई 3 इक्वल आया, बट उन्होंने दिया था एंगल जेड एंड एंगल पी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. It's okay, but Z and P are not included angles but the sides which in proportion. अगर एंगल Y और एंगल N देते थे तो S A S होता था, बट अभी ये S है, ये S है, और ये तो एंगल N, एंगल Z and P is not included angles but the sides which are in the proportion. Therefore, triangle X Y Z and M and P are not similar triangles. Is that clear to you? How to solve the questions over here? Okay, now इसके बाद उन्होंने अपने को और एक देखो दिया है, फोर्थ क्वेश्चन.
सॉल्व एग्जाम्पल 4। सो नाउ सी द सॉल्व एग्जाम्पल 4। उन्होंने क्या दिया है, एक्टिविटी दिया उन्होंने अपने को, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 on the page number 20, on the what, page number 20, पेज नंबर 20 के ऊपर फोर्थ एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन्होंने बोला है ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए बी सी पी क्यू, दिस इज ईयर ए, दिस इज ईयर बी, दिस इज ईयर सी, this is 90, this is 90 over here. Okay, so this is P and Q, this should be P over here, this should be Q over here. Okay, so क्या बोला है उन्होंने, क्या प्रूफ करने का है, show that triangle APB similar to AQC, to prove, what is to prove here, triangle APB similar to triangle what everybody, a very simple proof, the proof should be very easy। इधर क्या आएगा, स्टेटमेंट, इधर क्या आएगा, रीजन। ओके, सो नाउ सी इन ट्राइंगल APB and triangle what, AQC, APB और AQC में फर्स्ट पॉइंट एंगल P is congruous to angle Q, why, each 90 degree। okay, then number 2 student, everybody, angle A is congruous to angle A, what is that, common angle, what is that, common angle। so therefore triangle APB similar to triangle AQC by angle test of similarity। Is that clear to you everybody? How to solve? I repeat, APB and AQC में angle P congruous to angle Q, what is that, I am telling you here, angle P congruous to angle Q, each 90 degree, angle A congruous to angle A, common angle, so triangle APB congruous to AQC by which test, angle of similarity। so the number 5 is very very important student, mark the question number 5, solve example for 4 marks, 4 marks के लिए expected है, though it is solve example but very important question, I am telling you, 90% है asking the exams, exam में बहुत बार आ चुका है वो question number 5। क्वेश्चन 5 सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व पेज नंबर 20 के ऊपर का है। ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, बीच में ओ है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या बोला है उन्होंने, गिवन में क्या देखो दिया है स्टूडेंट देखो, गिवन ट्वाइस QA इज इक्वल टू QC, ट्वाइस QB इज इक्वल टू QD दिया हुआ है, ये गिवन है। टू प्रूव DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB प्रूफ करने का है। नाउ सी द प्रूफ। ओके, सो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो इधर स्टेटमेंट एंड व्हाट, रीजन। उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट ट्वाइस QA is equal to QC, therefore I am getting student QA upon QC is 1/2। okay,
दिस इज व्हाट गिवन टू यू। नंबर 2 वैसे ही क्या दिया है मुझे, और ट्वाइस क्यू बी is equal to QD. So I am getting everybody QB upon QD is also 1/2. This is also given to you. इतना सब लिखने के बाद हाँ, सो स्टूडेंट हमने क्या प्रूफ करने का है, DC is twice AB प्रूफ करने का है। तो वी हैव टू शो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दो ट्राइंगल अपने को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो AQB एंड CQD, सो दिस इज Q, नॉट O। हाँ, इन ट्राइंगल AQB एंड CQD दिख रहा है इधर। अभी नंबर 3 क्या, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CQD। स्टूडेंट देखो इधर AQB एंड CQD में QA अपॉन QC 1/2 दिया है मेरे पास, निकाला हुआ है। आई एम गेटिंग हियर QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD इज इक्वल टू 1/2 from 1 and 2. Okay, also come on, angle AQB is congruent to angle CQD, vertically opposite angle। तो अगेन यू स्टूडेंट देखो इधर क्या क्या मुझे मिला है, QA अपॉन QC, मतलब ये दोनों दिस इक्वल टू दिस और ए वर्टिकली अपोजिट। विच टेस्ट, SAS टेस्ट आ गया इधर। देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज सिमिलर टू CQD बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय SAS टेस्ट ऑफ व्हाट, सिमिलरिटी। तो दोनों तो प्रूफ हो गया, पर अभी इसके साइड्स क्या आएंगे, तो फोर्थ पॉइंट। सो आई एम गेटिंग व्हाट, देखो कभी भी फर्स्ट 2 अपॉन A2, तो क्या मुझे मिला, AQ अपॉन CQ, देन QB अपॉन QD इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन CD। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आई रिपीट, देखो as we had shown the two triangles similar, we can take AQ upon CQ, QB upon QD and AB upon CD, उसे बोलते हैं corresponding sides of similar triangle। But now you student, AQ upon QC, QB upon QD, इनका वैल्यू कितना मेरे पास है, 1/2 है। तो this is 1/2, this is 1/2 is equal to AB upon CD। so this is what, from 1 and 2 दोनों मिला। अभी इनको क्रॉस करेंगे, आई एम गेटिंग स्टूडेंट, सो मुझे क्या प्रूफ चाहिए था, वही मिला, क्रॉस करो। तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस AB इज प्रूव। ओके, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। मैंने क्या किया है, मुझे दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल ABCD ट्रापेजियम है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट पॉइंट Q। ये हमने क्या दिया है, ट्वाइस QA इज इक्वल टू QC दिया हुआ है, ट्वाइस QB इज इक्वल टू QD दिया हुआ है। शो दैट DC इज ट्वाइस AB। तो क्या दिया, ट्वाइस QA इक्वल टू QC, तो QA को वैसे QC नीचे लिया, A2 नीचे लिया, क्रॉस करो, मिल गया 1/2। QB अपॉन QD 1/2 मिला। सो दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CQD में पहला QA अपॉन QC, QB अपॉन QD is 1/2 from 1 and 2, and angle AQB is congruent to angle CQD, vertically opposite angles। तो by which test, so triangle AQB similar to CQD by SAS test of similarity। As the triangle similar, we can take AQ upon CQ, QB upon QD, AB upon CD, corresponding sides of similar triangle। But student, we have the values, this is 1/2, this is 1/2, so 1/2 equals to 1/2 is equal to AB by CD। So this is cross connection, we are getting CD is twice AB is verified over here, getting all the 5 sums। Now we can start your important exercise 1.3।
तो 1.3 चालू करने के पहले जो डायग्राम दिया है हम लोग बना के लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखो। सो 1.3 में उन्होंने फर्स्ट जो दिया हुआ है ओके, सो नाउ सी एवरीबॉडी, वी कैन स्टार्ट नाउ 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ किया कर रहा है। ए बी सी दिया है ट्राइंगल, ऐसा बना के दिया है, और बीच में एक लाइन ड्रॉ किया है डीई। दिस इज ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज योर ई। ओके, सो वन इज 75, अदर इज 75। ओके, एक 77 दोनों दिया हुआ है। एक कितना दिया है 75 दिया है, और ये भी कितना दिया है 75 दिया हुआ है। और क्या बोला है, स्टेट विच टेस्ट द टू ट्रायंगल सिमिलर by also write the similarity of the two triangles by proper 1-to-1 correspondence. Fine. So देखो वैसे ही करना पड़ेगा डायरेक्टली। हाँ, उन्होंने अपने को इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ई में लेंगे। देखो इन ट्रायंगल व्हाट स्टूडेंट, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ओके, so first point everybody, angle B is congruent to angle D. Why? Each 75 degree. Number 2, angle C is congruent to angle C. Why? Common angle. Get it? So what I am getting here, therefore triangle ABC similar to CDE by everybody angle test of similarity. So now take the sides I am getting here. So AB upon CD, BC upon DE, AC upon CE, corresponding sides of similar triangle। और एंगल लिख सकते हैं हम लोग, एंगल A congruent to एंगल C, एंगल B congruent to D, एंगल्स बाद में वापस C congruent to एंगल E आएगा इधर। देखो A और C, B और D और C cons to E, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। गेटिंग, आई एम टेलिंग यू। तो फर्स्ट दो ट्रायंगल बताओ सिमिलर है, बाद में उसके लेने का है सिमिलर पार्ट्स। तो कैसे लेने का, ए बी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ए एंड सी, बी एंड डी, सी एंड ई, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। गेटिंग एवरीबॉडी। तो नंबर 2 भी वैसे ही बता के दिया उन्होंने, हाउ टू शो नंबर 2। तो अभी देखो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे सॉल्व किया उन्होंने। सो नाउ सी, मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर रहा है उसका 2 का क्वेश्चन का। दिस वन ट्रायंगल, दिस इज अदर ट्रायंगल। ओके, हाँ क्या दिया है, पी क्यू आर एल एम एन। This is P, this is Q, this is R, this is L, this is M, this should be N। एलिमेंट बनाया मैंने। हाँ, और क्या क्या दिया है, 6 8 10 3 4 5, 6 8 10 3 4 and 5। और क्या बोला है, आर द ट्रायंगल सिमिलर इफ एज में विच टेस्ट, वैसे ही सेम। आर द ट्रायंगल सिमिलर, are triangle PQR and triangle LMN similar if S by which test, by which test।
ओके, सो दिस वी हैव टू प्रूव. एकदम इजी प्रूफ है. देखो स्टूडेंट, हाउ टू राइट द प्रूफ. सी, कंसीडर इन ट्रायंगल PQ. Consider in triangle PQR and triangle LMN. Okay, so first PQ upon LM, 6 by 3, 2 by 1. Number 2, QR upon MN. What is that? 8 by 4 is what? 2 by 1. Number 3, PR upon ln, 10 by 5, that is what? 2 by 1. So these all are given to you. ये सब दिया हुआ है अपने को, सबका सेम आया है इधर वैल्यूज. So what is the final answer? Therefore I am getting PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon ln is equal to 2 by 1, right? So I am getting triangle PQR similar to triangle LMN by SSS, test of similarity. By which test? SSS, test of similarity. Understood how to solve, everybody? Okay. अभी नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने डायग्राम तो दिया हुआ है अपने को बना के. सो अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो. अभी 3 देखो कैसे करने का वहां का क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? As shown in the diagram, the two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular on the ground. दो पोल्स P, R, Q and ACB, दो ट्राइंगल बना के दिए हैं. ये बनाता है इधर. ओके, बनाया. हाँ, एक PQR है और एक ABC है. दिस PQR, दिस शुड बी ABC. 90 डिग्री बनेगा इधर दोनों. 4, 6, 8x, 4, 6, 8x, ठीक है. हाँ, और क्या बोला है? मैं सम पढ़ रहा इधर. द टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर द ग्राउंड. परपेंडिकुलर है इसके लिए मैं 90 का मार्क किया इधर. इफ द लेंथ ऑफ द शैडोज, इसके शैडोज, इसकी शैडो है इधर आई, इसकी शैडो यहाँ मिली मुझे. सो देन व्हाट विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल. ये जो बड़ा पोल है उसकी शैडो क्या रहेगी? ओके, सो क्या चाहिए? व्हाट विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम. ओके, मतलब क्या करने का? टू फाइंड शैडो ऑफ द बिगर पोल. शैडो ऑफ bigger pole, that is BC का वैल्यू. BC is equal to how much? Now see the solution. I am telling you student, shadow आ गया मतलब there should be a particular sun rays. Due to sun we will get the shadows. तो देखो इधर हम लोग लिखेंगे consider AC and PR. First point, consider AC and PR are two poles of height 8 meter and 4 meter perpendicular to ground. Okay, so this is they had given to you. Okay, हाँ, परपेंडिकुलर है. therefore I am getting student angle C is congruent to angle R. Why? each what 90 डिग्री में जाएगा. ओके, नंबर 2. नाउ स्टूडेंट
ACAB, segment AB and PQ, segment AB and segment PQ are पैरेलल सन रेज, सन के रेज है, पैरेलल है। ओके, नंबर 3 पे जाएंगे अभी हम लोग। सेगमेंट BC इज द शैडो ऑफ द बिगर पोल, सेगमेंट BC इज शैडो ऑफ द बिग पोल and consider length BC is equal to what? X मीटर। मैंने क्या जिम किया? X मीटर। फोर्थ, segment RQ is what? Shadow of small पोल। ओके, और क्या दिया है अपने को? लेंथ RQ कितना दिया है? 6 मीटर। नाउ नंबर 5, देखो दो ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल व्हाट? PRQ। okay, so what? First, angle C is congruent to angle Q, each 90 degree. Angle B is congruent to angle Q, corresponding angles. So what is that? Therefore, I am getting, student, so triangle ACB सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। एक फेवरेट टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, नंबर 6 इधर लगेगा में, उसका साइड्स क्या आएगा? तो फिर बोलो AC अपॉन व्हाट? PR, देन व्हाट? CB upon what? RQ, then what? AB upon what? PQ. What is that? Corresponding sides of similar triangle. तो वैल्यूज है अपने पास, AC कितना है? 8, PR कितना है? 4, BC we consider X and RQ they are given 6। तो क्रॉस करेंगे हम लोग, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा, so X कितना मिला? 12 मीटर। तो what was the shadow of the bigger pole? Last point, therefore shadow of the bigger pole is 12 मीटर। I'm explain this sum again over here। देखो तो क्या करने का है मुझे? वो शैडो ऑफ द बिगर, मतलब बड़ा पोल है उसकी शैडो निकलने को बोला BC। तो मैंने क्या किया? कंसिडर AC and PR are two poles of height 8 meter and 4 meter, 8 meter and 4 meter perpendicular to the ground. Therefore, angle C is congruent to R, each 90 degree आ जाएगा। Segment BC and segment what? Segment AB and segment PQ are the parallel sunrays है। Okay, so मैंने क्या किया है? Segment BC the shadow of the big pole and should be X, और RQ शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल 6 दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ, C कॉन्ग्रुएंट टू R, C कॉन्ग्रुएंट टू R नॉट Q। इधर क्या आएगा? एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एवरीबॉडी? इधर R लिखो। हाँ, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू R ईच 90 डिग्री। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, corresponding angles, so triangle ACB similar triangle PRQ by angle test of similarity, so AC upon PR, CB upon RQ, AB upon PQ, corresponding sides of similar triangle। तो वैल्यूज दिए थे, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस किया, गेट द वैल्यू ऑफ X। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X?
the value of the shadow of the bigger pole is what? We are getting 12 meter. Okay, so now do one more question over here. Fourth question देखो क्या दिया उन्होंने. Fourth question उन्होंने दिया हुआ है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी जो किया हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ डायग्राम बनाया मैंने, ए बी सी, दिस इज ए बी सी पी और क्यू. ओके, हाँ. और क्या बोला है वैल्यूज, उन्होंने ऑलरेडी शो दैट बोला है फाइंड ए सी. सो ए सी का वैल्यू क्या रहेगा. सॉल्यूशन. सो वी टेक टू ट्रायंगल्स. कौन से दो ट्रायंगल्स? सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी. सी पी ए देखो, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, वही चाहिए ना अपने को. हाँ, ठीक है. तो इधर फर्स्ट क्या आएगा? एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल. क्या आएगा? कॉमन एंगल. दूसरा क्या आएगा? एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. कौन सा? ईच 90 डिग्री का एंगल है. Therefore, triangle CPA is similar to triangle CQB by angle test of similarity. ओके, तो साइड्स बोलो इधर. CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. हाँ, तो वैल्यूज देखते जाओ. AP कितना दिया है? 7. तो AP कितना है अपने पास? 7. जहाँ दिया वहाँ डालते जाओ वैल्यू. देन BQ is 8, so this should be, we have 8 over here. After that BC is 12. Over here BC they had given to you 12. और we need to find out AC over here. तो उसको ऐसे रखो, इनको क्रॉस करो. तो what I'm getting over here, ये मुझे कितना मिला? 7 multiplied by 12 upon 8 is equal to what? AC. 4 2s are 4 3s are 7 3s are, I'm getting student 21 by 2. So this is 10.5. So what was the value of AC I'm getting over here? The value of AC is here 10.5. Okay, समझा? नंबर 4. तो अभी उन्होंने दिया हुआ है नंबर 5 और 6 करेंगे बाद में, 3 बाद में करेंगे हम लोग. नंबर 5 देखो क्या दिया है उधर. नंबर 5 सॉल्व एग्जांपल मैंने किया था उस टाइप का, वैसे ही है. क्वाड्रिलैटरल PQRS, बीच में A दिया हुआ है. दिस इज PQRS और बीच में क्या है? A दिया है. हाँ, इन द ट्रापेजियम PQRS सब दिया हुआ है. गिवन में क्या देखो दिया है? Given what I ask you to over here, AR is 5 times AP. AR is what? 5 times AP. AR is 5 times AP दिया है और AS is 5 AQ. AS is 5 times AQ दिया है, उधर 2 टाइम्स दिया था. इधर क्या 2 प्रूव करने का है अपने को स्टूडेंट? To prove SR is 5 PQ. SR is 5 times PQ. वैसे ही प्रूफ है.
ओके सो क्या आएगा, स्टेटमेंट एंड व्हाट रीजन। हाँ, उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट quadrilateral PQRS, PQRS is a trapezium, this is given to you, or PQ is parallel to what, SR। नंबर 2, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल PAQ, तो P लिया तो RAS, व्हाट आई एम डूइंग, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल व्हाट, RAS। ओके, हाँ, अभी इधर का पार्ट यहाँ लिखते हैं हम लोग। उन्होंने क्या दिया अपने को, AR is 5 AP दिया हुआ है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग स्टूडेंट AR अपॉन AP is 5/1। ओके, also AS is what, 5 times AQ, so I am getting AS अपॉन AQ is 5/1। तो देखो AB मिला 5/1, AB मिला 5/1, दोनों इक्वल है। ओके, सो देयरफॉर मुझे क्या मिला, आई एम गेटिंग हियर AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/1। देखो AR अपॉन AP एंड एंगल PAQ, angle what, PAQ is congruent to RAS, angle what, RAS, vertically opposite angle। okay, therefore मुझे क्या मिला, triangle PAQ is similar to triangle what, RAS by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SAS टेस्ट ऑफ व्हाट, सिम। तो साइड्स बताओ इसके क्या मिलेंगे, आई एम गेटिंग PA अपॉन RA इज इक्वल टू AQ अपॉन AS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मुझे क्या चाहिए, SR, वेयर इज SR, SR एंड PQ। अभी देखो मेरे पास क्या क्या है, AR अपॉन AP, AR अपॉन AP, बट AR अपॉन उल्टा है ना, इधर 5/1, इधर में कितना लिखूंगा, इधर तो आई एम राइटिंग हियर 1/5 बिकॉज दिस इज माय AR बाय AP, दिस PA बाय AR, तो 1/5 आएगा। इधर भी कितना आएगा, 1/5 इज इक्वल टू व्हाट, PQ अपॉन RS। क्रॉस करो स्टूडेंट, व्हाट वी आर गेटिंग देन हियर, सो दिस इज SR is 5 times PQ is verified over here। okay, so student we will suppose to take stop over here। हम लोग यहाँ करते, मैंने 5 1.3 के सम्स किए हैं एंड 5 we had solved examples। so this is a 1.3, आधा ही हुआ है, आधा पार्ट we will do in the tomorrow's lecture। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये all 10 sums you have to send me the homework for tomorrow's lecture। जिन लोगों का होमवर्क नहीं आएगा उनको मेरे लेक्चर्स अलाउड नहीं करेगा। ओके, सो एज यू गेट दिस वीडियो लेक्चर यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.3 एज योरसेल्फ। तो एवरीबॉडी, सो टुडेज होमवर्क इज व्हाट, एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम ऑन स्टार्ट राइटिंग दिस।